Udaan with Raju Prajapati. So, hello Divanshu, how are you? Hello all, I'm fine sir. Yeah, thank you. So, hello all. Today we are going to discuss about CUT examinations. CUT basically is a common university entrance test, and through which there are a lot of entries that we get in basic sciences and food technology and other agriculture subjects as well. But today we are going to discuss about only food technology and related courses and what are the universities that give admission through CUT. So Divanshu, please tell something about yourself. So hello all, myself Divyanshu Gupta and currently I am a student of Pondicherry University, Masters in Food Science and Technology program. I have completed my bachelor's from Delhi University, Bhaskaracharya College of Applied Sciences. It was a 3 years course and I was in bachelor's in food technology and it was a honors course. I have completed my plus 2 from Delhi itself, CBSE board. Nice, nice, Divanshu. So till now, your journey has been very. I know I know from last 6 months to you, you have been preparing for a lot of examinations, and fortunately, last year, this examination came, the CUT came, and before that, we had kind of for different institute for BHU, you have to give BHU examinations, Hmm. Hmm. entrance test. Then for Pondicherry, you have to give Pondicherry test. And then other there were a lot of colleges then even we are not aware of, even Hmm. Central University of Punjab and Baba Bhimrao Ambedkar College also, which are giving food technology courses, even Tejpur University, even I was not aware of. So Divanshu, that time in last year when you were about to pass out from your college, how much you are aware of? Generally, I feel like a lot of students are not aware of opportunities if someone is wishing to do masters. So please put some light on that. So sir, सेम थिंग हैपेंड विद मी व्हेन आई वाज गिविंग माय फाइनल एग्जामिनेशन. जब मैं अपना लास्ट एग्जाम दे रहा था उसी टाइम पे Right. एवरी आई आस्क्ड एवरी सीनियर ऑफ माइन एंड ऑल द फैकल्टीज दैट वेयर शुड आई गो टू कंप्लीट माय मास्टर्स. So many came with the idea that you should go to BHU. Some said that you should go to GNDU, or some of my faculties were from Pondicherry University. So they said that you should go to Pondicherry because they have a very good faculty there and the department is very good there. सो मैंने फिर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स और काफ़ी सारे कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करा. उनमें से आई गॉट टू नो दैट पौंडीचेरी, BHU, Central University of Punjab and Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University are the four good universities that are central universities which we can go to pursue our masters. And apart Right. from central universities हमारे पास एक GNDU है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी and Lucknow University. They are state universities which are also giving masters in food technology. So हम उनका भी Right. एग्जाम दे सकते हैं. बट लास्ट ईयर से पहले क्या था कि हमको हर यूनिवर्सिटी का एक अलग एग्जाम देना पड़ता था. लाइक पौंडीचेरी का अलग एग्जाम हो रहा है, BHU का अलग एग्जाम हो रहा Right. है एंड समटाइम्स डेट्स क्लैश करती थी एंड प्रिपरेशन के लिए भी सबका सिलेबस अलग था. सो NTA ने जो भी करा काफ़ी अच्छा करा कि सबका सिलेबस मर्ज करके एक सिंगल एग्जाम करा दिया. अब CUET एग्जाम के थ्रू क्या है कि आप एग्जाम देंगे तो आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं. स्टेट यूनिवर्सिटीज का अभी भी प्राइवेट एडमिशन चल रहे हैं. लाइक स्टेट यूनिवर्सिटीज का अलग से एग्जाम होता है, JNDU अपना अलग Right. एग्जाम कंडक्ट कराता है, लखनऊ यूनिवर्सिटी अपना अलग एग्जाम कंडक्ट कराता है. सो दिस इज द थिंग रिगार्डिंग द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो इनकी डेट्स जस्ट आफ्टर यू कंप्लीट योर लाइक जैसे ही हमारे बैचलर्स के एग्जाम्स कंप्लीट होते हैं उनके नेक्स्ट मंथ ही हमारी इनकी एंट्रेंस फॉर्म की फिलिंग डेट्स आ जाती हैं एंड Right. अराउंड उसके 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमारे एग्जाम की डेट्स भी आ जाती हैं. ओके. सो आप बोल रहे हो कि जैसे अपन बैचलर्स कंप्लीट कर रहे थे मोर ऑफ इन मतलब ये मार्च अप्रैल में होता है और मार्च एंड अप्रैल में अप्रैल मंथ. राइट, और उसी टाइम में एंट्रेंस का ये सीयूटी का जो होता है पहले जैसा होता था कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज का मई और जून में एंट्रेंस होते थे, जून उनमें जून के लास्ट तक रिजल्ट निकलता था एंड देन विल बी गेटिंग एंट्री टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज वेर एवर वी गेट एडमिशन एट. नाउ अभी क्या हो गया कि एनटीए ने सीयूटी लाके इट हैज बीन अ सिंगल गेटवे टू गेटिंग इनटू द डिफरेंट कॉलेजेस, राइट? तो आप मुझे सीयूटी के बारे में क्या प्रोसेस होता है और आपने कौन-कौन से एग्जामिनेशन दिए अपने सालों में, अपने पिछले सालों में जब एंट्री के लिए, ठीक है, मास्टर्स के लिए, और उसका प्रोसेस क्या था? कैसे रैंकिंग होती है? उसके बारे में थोड़ा बताओ आप प्लीज़। Okay, so sir, CUET is a basic exam that is conducted by NTA for entrance examination in all the central universities. तो उसका नाम ही ऐसा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन. सो इसमें हमारे अलग अलग कोड्स होते हैं फॉर अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़. अगर हम BHU के रिगार्डिंग जाते हैं तो BHU का जो कोड है PGQP 08 है
एंड उसमें भी अगर हम 4th नंबर कोड जाते हैं, बिकॉज 08 में भी हमारे 4 डिमार्केशन है, तो PGQP 08 में जो 4th नंबर है दैट इज फॉर फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा 11th नंबर कोड है दैट इज एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। 12th नंबर कोड इज फॉर डेयरी टेक्नोलॉजी एंड 13th नंबर कोड इज फॉर फूड टेक्नोलॉजी। इसमें से 11, 12 एंड 13 आर बेसिकली कंसर्न अबाउट BHU, एंड जो कोड नंबर 4 है दैट इज फॉर तेजपुर यूनिवर्सिटी, उसमें आपको MTech डिग्री मिलेगी बिकॉज दे अलाउ ओनली BTech कैंडिडेट्स टू एंटर देयर। ओके ठीक है। आफ्टर कमिंग टू अब हम 31 कोड पे आते हैं, तो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोड है ये। इसमें MTech कोर्स देता है हमारा APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी। MSc फूड ओके साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज गिवन बाय पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब एंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी दैट इज सिचुएटेड इन श्रीनगर also gives the same MSc food and nutrition and food processing and management that is a BVOC course that is provided by BHU for PGQP 31. So I gave ओके most of these exams. So this is the thing. And coming to the central state university examinations, so we have JNDU Guru Nanak Dev University that is situated in Amritsar. उसका एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसकी डेट्स आपको उनकी साइट्स पर मिल जाएंगी जैसे ही आप के एग्जामिनेशन खत्म होते हैं। आप एग्जाम इस साल शायद थोड़ा जल्दी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, तो आप अप्रैल मंथ के एंड से आप अपनी जो भी डेट्स हैं वो सब चेक करते रहिए सारी साइट्स की। इन सारी यूनिवर्सिटीज की साइट्स पे आप डेट चेक करते रहिए, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मिल जाएगा जैसे राइट इनके फॉर्म राइट की डेट्स ओपन होती हैं। ओके तो आप बोल रहे हो कि अपन जैसे CUT एग्जामिनेशंस होते हैं, CUT में कई सारे कोड होते हैं, जैसे कि 31 हम्म है, हम्म PGPQ 08 है, उसके कई सारे हम्म सब डिविजन्स है। उनमें से हम्म अपन पर्टिकुलरली जो फूड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है, चाहे वो बैचलर ऑनर्स हो 3 ईयर डिग्री हम्म प्रोग्राम में हो, और आइदर ही इज हम्म इन BTech 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम, he can give हम्म this examinations on the basis of that where he want to take admission at, right? हम्म So हम्म अगर वो BTech का बंदा है, अच्छा माय क्वेश्चन इज, मेरा कंफ्यूजन, अगर BTech का बंदा है वो BSc के जैसे MSc के लिए कोर्स ले सकता है क्या? जनरली लोग प्रीफर नहीं करते हैं, लेकिन देखो हम्म BSc का बंदा तो BTech के जैसे MTech में एडमिशन नहीं हो सकता, राइट? हम्म अगर BSc हम्म किए हो आप तो MTech में एडमिशन हो सकता है। सर अगर आपने बीटेक करा हुआ है तो आपका एमएससी में एडमिशन हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर पौंडीचेरी में जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ काफ़ी सारे बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं जिनने बीटेक भी करा है, साथ में 1 से 1.5 साल का ड्रॉप भी लिया है। तो ओके ऐसे भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो जिनने बीटेक करने के बाद ड्रॉप भी लिया है, बट बीटेक कैंडिडेट्स एमएससी कर सकते हैं, बट बीएससी कैंडिडेट्स कांट डू एमटेक। ओके दिस वाज द हम्म गुड, ओके आई गॉट इट। हम्म ओके तो उसके बाद से जब हम CUT का एग्जामिनेशन हो गया, हमने अपीयर कर लिया अपने जो जो हाँ भी हमारे कैटेगरी के हम्म अकॉर्डिंग हमारा हम्म जो सब्जेक्ट था, वी हैव अपीयर्ड। हम्म नाउ व्हाट वाज द सेकंड स्टेज? कैसे रिजल्ट कैसे आता है? मार्क्स आते हैं या परसेंटेज आता है या रैंक्स आते हैं, कैसे होता है? ओके, सो आई विल एक्सप्लेन अबाउट दैट। आपने सीयूईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम है आपके पर्टिकुलर कोड का, आपने वो दे दिया। नाउ यू हैव टू वेट फॉर द नोटिफिकेशन बाय एनटीए कि कब वो आपकी आंसर की निकालेगा, बिकॉज सबसे पहले आंसर ओके की निकलती है। आंसर की निकलने के बाद आपको आपके आंसर्स भी रिफ्लेक्ट करे जाएंगे साइट पर कि आपने ये आंसर्स फिल करे हैं, दीज आर द करेक्ट आंसर्स। अब अगर आपको डाउट होता है कि नहीं मैंने ये वाला आंसर मार्क करा था एंड दे आर शोइंग द डिफरेंट आंसर एज द करेक्ट, आप उसके खिलाफ कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, तो वो आंसर आपका रिव्यू में चला जाएगा। ठीक है, ये एक राइट से 1.5 हफ्ते का प्रोसेस रहता है, अराउंड 10 से 15 डेज चलते हैं इसमें। इसके बाद फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट निकाला जाएगा जिसमें आपके फाइनल मार्क्स निकाले जाएंगे। ओके अब आपने जो भी कोड का पेपर दिया है उस कोड के आपके मार्क्स रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। अब नाउ यू कैन प्लान कि अगर आपके मार्क्स उसमें अच्छे हैं, टॉपर के कितने मार्क्स हैं, उससे आपके कितने कम मार्क्स जा रहे हैं, उससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि हाँ मेरे इतने मार्क्स जा रहे हैं अराउंड। अगर टॉपर से आपके 20 से 30 मार्क्स कम आ रहे हैं, सो यू कैन बी श्योर दैट आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड रेस्ट ऑल ऑलराइट डिपेंड्स ऑन द लिस्ट, बिकॉज डिपेंड्स ऑन कितने कैंडिडेट्स वो एग्जाम दे रहे हैं या फिर कितने उसका इनटेक है कितने सीट्स का। तो आपको फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आ चुका है आपके हाथ में। नाउ यू हैव टू वेट फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज टू ओपन देयर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। ठीक है, जैसे ही सारी यूनिवर्सिटीज अपना एक एक करके रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल बीएचयू अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोलेगा, यू हैव टू रजिस्टर ऑन दैट पोर्टल दैट यू वांट टू टेक एडमिशन इन दैट कोर्स एंड यू हैव गिवन दैट एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। आपने उसका एग्जाम दिया है एंड आपको उस कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, सो यू हैव टू पे मिनिमल फीस ऑफ अराउंड 200 और 300। सो वो आपको फीस सबमिट करके उस कोर्स के लिए रजिस्टर कर देना है। सेम गोज विद पौंडीचेरी एंड अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लाइक पंजाब एंड बीबीएयू। उसके बाद फिर से 1 से 1.5 वीक बाद यूनिवर्सिटीज अपनी सेलेक्ट लिस्ट निकालेंगे कि इतने बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया था जिनमें से इन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है और हम इतनों में से इतने स्टूडेंट्स को पहले लिस्ट में ले रहे हैं। तो अगर राइट आपका राइट नाम उस लिस्ट में आता है
सो आपको उनके पेमेंट पोर्टल पर जाना है और उसकी फी पेमेंट कर देनी है। जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी का फी पेमेंट करते हैं, आपकी 3 मंथ्स के लिए सीट लॉक हो जाती है। दैट मीन्स वो यूनिवर्सिटी आपको 3 मंथ्स के अंदर आपको एडमिशन कैंसिल नहीं कर सकती। आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर अपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। अगर आप उसको नहीं करते तब आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, बट योर एडमिशन इज लॉक्ड फॉर 3 मंथ्स नाउ इन दैट यूनिवर्सिटी। राइट, यू और हैव यू शुड बी गिवन द सीट। हाँ, प्रोविजनल एडमिशन, प्रोविजनली हम यू उसको प्रोविजनल एडमिशन कहते एडमिटेड। हैं। राइट, हम्म। राइट, राइट। अच्छा, बिफोर मूविंग एड, आई मीन, मुझे एक बात बता दो कि सीयूटी के एग्जामिनेशन में जनरल पैटर्न क्या रहता है और कितने मार्क्स का सीयूटी एग्जाम रहता है, और यह सभी जो कोड है सब में इक्विवेलेंट मार्क्स रहते हैं या क्या कुछ डिफरेंस रहता है? सर देखिए, बेसिकली सीयूईटी एग्जाम जो एनटीए कराता है उसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। दो ठीक है। पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ सेक्शंस होते हैं लाइक वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड एंड ठीक जनरल है। नॉलेज के थोड़े से क्वेश्चंस रहते हैं। टोटल 25 क्वेश्चंस रहते हैं। Each ओके। question is of 4 marks. Each question will be of 4 marks, and 1 mark is negative marking. That goes with all the entrance examination. जैसे भी हम entrance examination देते हैं, सब में यही रहता है। 4 marks are awarded for the correct answer, and 1 marks will be deducted from your total answers for as a negative marking. ठीक है। Okay. So ये हमारा पार्ट ए हो गया। पार्ट बी विल बी आर कोर। अब उसमें 75 क्वेश्चंस होंगे जो आपको देने हैं। दैट विल बी प्रॉपरली फ्रॉम योर कोर सब्जेक्ट। ओके, सो टोटल 100 क्वेश्चन में से 400 का पेपर हो गया हाँ, एंड विल 400 गेट का पेपर 100। होता है ओके, 100 क्वेश्चन। मार्क्स हो गया अपना, या एंड 100 मार्क्स वी गॉट फॉर जनरल एप्टीट्यूड, 25 हम्म क्वेश्चन है तो, और हम्म देयर आर अदर 75 क्वेश्चन दैट वी गेट फॉर 300 मार्क्स। हम्म ओके, हम्म। सो अभी रिजल्ट आ गया, सो हाउ मच मार्क्स यू गॉट फॉर, यू हैव आल्सो अपीयर्ड फॉर बीएचयू, यू आल्सो अपीयर्ड यस फॉर सर। सीयूटी, दिस पौंडीचेरी, सो आपको कितने मार्क्स थे सीयूटी के डिफरेंट कोर्स में? प्लीज टेल अबाउट दैट सो दैट पीपल सर कैन गेस कि व्हाट एस्टिमेटेड स्कोर दे हैव टू गेट। सो सर, लास्ट ईयर के अगर मैं रिजल्ट्स बताऊं तो बीएचयू में टॉपर गॉट 194 मार्क्स एंड माय मार्क्स वर अराउंड 155। ओके। Okay, it was, I mean, हाँ among out of 400, 194. हाँ, 194 वाज द टॉप हाईएस्ट मार्क्स। सो बीएचयू का पेपर थोड़ा सा टफ आया था एज कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशंस। एंड अगर मैं जीएनडीयू की बात करूँ, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, देयर आई गॉट द 19th रैंक। एंड ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आई गॉट द 9th रैंक, बिकॉज वहाँ पर भी ये कोर्स है। किसी को पता नहीं है इस बारे में, बट मेरे थोड़े सीनियर्स ने बताया कि वहाँ पर नया कोर्स है ये। मैंने खुद विजिट करा था लखनऊ यूनिवर्सिटी, वहाँ के जाके एचओडी से मिला मैं। डिपार्टमेंट काफ़ी सुंदर था, उनके पास न्यू सारी मशीनरी थी। 2017 या 16 में ही वो डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ है, तो सारी चीज़ें वहाँ पर Oh, न्यू हैं। nice. आपको जो भी मिलेंगे सारी नई फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पे। बट ये है कि वो थोड़ा लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, बस ये चीज़ है। Right. मैम ने भी यही बोला कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे आते जाएंगे ना, अब आप कंसेक्यूटिव बैच निकलेगा ना, तो उनके जूनियर्स आएंगे, तो ऐसे हमारा डिपार्टमेंट और पॉपुलर होगा। अभी उनकी काफ़ी अच्छी क्या कहते हैं, इंटर्नशिप्स एंड वो भी कराते हैं स्टूडेंट्स को। मेरा एक बैचमेट है वहाँ पे। एंड कमिंग टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, आई गॉट आई गेस 253 मार्क्स। 257 वाज द टॉपर्स हाईएस्ट मार्क्स, तो मेरा सेकंड रैंक Oh, या अराउंड थर्ड nice. रैंक था। हाँ, सेलेक्ट लिस्ट में मेरा सेकंड रैंक था, बट आई डोंट नो अबाउट द टोटल सीयूईटी रैंक। आई गेस मेरा उसमें थर्ड रैंक था, बिकॉज आई हैव टॉक्ड विद द टॉपर आल्सो। टॉपर इज इन माय बैच ओनली, आर योगेश्वरन। यू कैन चेक फ्रॉम एनटीए साइड। तो मेरा Right. काफी अच्छा दोस्त है वो। एंड सेकंड इज आई गेस ऋत्विक, सो ही इज इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। आई नो हिम आल्सो। आई गेस आई एम द थर्ड पर्सन फ्रॉम ओवरऑल सीयूटी स्टूडेंट्स। एंड पौंडीचेरी में Right. देखा जाए तो आई एम द सेकंड पर्सन हु गॉट द एडमिशन। Right. Very good. Very good. Congratulations. थैंक यू सर। ओके, सो जनरली लोगों को अभी इन सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं है। जैसे आपने बताया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, या पौंडीचेरी एंड बीएचयू के बारे में तो काफी लोग अवेयर है। तो आप मुझे एक बात बताओ, तो जैसे अभी एडमिशन हो गया, आपका अब लिस्ट निकल गई, फिर आपने पोर्टल पर जाके एडमिशन हो गया, ठीक है। अगर आपने दो जगह एडमिशन ले लिया, लेट से आपने पहले, एक तो ये एक साथ में प्रोसीजर होता है या इट हैज अ डिफरेंस ऑफ टाइम? कैसे होता है एडमिशन ओके, वाला जब लास्ट तो स्टेज सर में? मैं इसको फॉर एग्जांपल देके बताता हूँ। लाइक मेरा सीयूईटी पीजीक्यू पे 31 का रिजल्ट आ चुका है। अब आई एम ओके। वेटिंग फॉर द यूनिवर्सिटी टू स्टार्ट इट एडमिशन। ओके। ओके। अब मान लीजिए मेरा नाम पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की लिस्ट में आ चुका है। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में नाम शो हो रहा है एंड दे आर शोइंग द पेमेंट लिंक। मैंने उसकी पेमेंट कर दी। अब मेरा वहां पे एडमिशन प्रोविजन हो चुका है। आई कैन गो देयर एंड स्टडी देयर। लेकिन अब दैट डिपेंड्स ऑन मी कि अगर मुझे पौंडीचेरी आना है या फिर मुझे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जाना है, तो
मुझे बाद में वो एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा अपना वहां से, एंड फिर मुझे पौंडीचेरी में आना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। ओके तो मुझे पहले पौंडीचेरी की फीस सबमिट करनी पड़ेगी ताकि मेरा पौंडीचेरी में सीट लॉक हो जाए। उसके बाद आई हैव टू डू द कैंसिलेशन एडमिशन प्रोसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। वहां से अपनी सीट कैंसिल करा के आई हैव टू गो टू द अदर यूनिवर्सिटी। ओके ओके आई गॉट इट आई गॉट इट ओके। अब मुझे बता दो अगला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, पहली बार ये एग्जाम आया है। तो आपने बता दिया इट इज ऑफ 100 मार्क्स, 25 जनरल एप्टीट्यूड एंड 75 ऑफ कोर सब्जेक्ट। व्हाट इज द लेवल? एक जनरली बहुत सारे एग्जाम्स जो पहले होते थे इंडिविजुअल एग्जाम्स होते थे, बीएचयू का जैसे होता था और बाकी का होता था, पौंडीचेरी का भी होता था, तो हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट? क्योंकि पहली बार एग्जाम दिया था तो वी डिडंट हैव अ बेस कि यार कैसा पेपर आएगा, नोबडी नोज दैट, किसी को आइडिया नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन हाउ डिड यू फील लाइक कि कैसा एग्जामिनेशन, कितने दिनों की प्रिपरेशन चाहिए और कितने डीपली लोगों को पढ़ना चाहिए? सो बेसिकली अगर यू आर अ फूड टेक्नोलॉजी, जिसने अगर आपने अपनी बैचलर्स फूड टेक्नोलॉजी में करी हुई है, तो आपके लिए कंपैरेटिवली बाकियों से थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, बट यू हैव टू स्टडी फॉर दैट एग्जाम। आपको अपने जितने 6 सेमेस्टर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स थे सबको थरली पढ़ना पड़ेगा। उसके एक एक राइट पॉइंटर से उस सब्जेक्ट के क्या क्या बेसिक्स हैं, उस सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें जनरली पूछी जाती है आपको पता होनी चाहिए। एंड आपको उस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स के बारे में टिप्स पे याद होनी चाहिए चीज़ें। लाइक अगर आप ओके फूड केमिस्ट्री के हैं तो आपको पता होना चाहिए आयोडीन टेस्ट क्या होता है, एंड अलग जितने भी टेस्ट होते हैं। पैकेजिंग से हैं तो आपको पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में पता होना चाहिए। मीट एंड पोल्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको उनके बेसिक बायोकेमिकल चेंजेस पता होने चाहिए, क्या होते हैं मीट में। अगर आप फॉर एग्जांपल फूड इंजीनियरिंग पढ़े हैं तो आपको इंजीनियरिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो यही सब चीज़ें आती हैं एग्जाम में। और अगर आपने फूड प्रोसेसिंग इन वेजिटेबल्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का होता है तो उसमें जनरली फ्लो चार्ट पूछ लेते हैं वो लोग कि शो द राइट फ्लो राइट चार्ट ऑफ ग्रेप्स प्रोसेसिंग, ग्रेप जूस प्रोसेसिंग। तो उसमें आपको राइट उन 5 चीज़ों को सीक्वेंस में अरेंज करना रहेगा। तो दीज आर द क्वेश्चंस। अगर कोई भी स्टूडेंट चाहे तो वो एक्सेस कर सकता है क्वेश्चंस को, उनके सीनियर जितने भी हैं मेरे पास भी अगर वो कांटेक्ट करेगा तो आई विल प्रोवाइड द क्वेश्चंस। मेरे पास वो क्वेश्चंस हैं ओके। अभी। तो हम्म। ऐसा होता है कि पेपर तुरंत ही मिल जाता है, राइट? नहीं, पेपर तुरंत नहीं मिलता सर। पेपर जब हमारी आंसर की रिलीज होगी ना उसी के साथ हमको पेपर मिल जाएगा। ओके 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 आई गॉट इट आई गॉट इट। हाँ, तो एक अच्छे लेवल का पेपर आता है, बहुत हम्म। कॉन्सेप्चुअल आता है, अगर हम इन हाँ, नटसेल कंसेप्चुअल। बोले तो अगर बच्चा पढ़ आपको। के जाएगा तो वो पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर सकता है। अगर वो पढ़ के नहीं जाएगा तो वो शायद पार्ट ए अटेम्प्ट कर ले, बट पार्ट बी के एस्टिमेट 3 to 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा, बिकॉज सारा पेपर बाकी नहीं कोर का से ही होता है। हाँ। नहीं नहीं, आपको उसके लिए बहुत बहुत पढ़ना पड़ेगा, राइट? अभी हम्म। जनरली लोगों का एक ऐसा होता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो पॉपुलर है उसमें अपन जाना चाहते हैं, जैसे बीएचयू हो हम्म। गया, पौंडीचेरी हो हम्म। गया। तो आप ये बता दो कि पौंडीचेरी में नाउ यू हैव बीन देयर इन पौंडीचेरी फ्रॉम लास्ट 5 to 6 months। तो आपका नो नो, एक्सपीरियंस आई एम कैसा देयर फॉर रहा है? 2 मंथ्स। मेरा ओ, दिसंबर में एडमिशन हुआ था। ऐसा इतना लेट क्यों? रिजल्ट्स केम सर इस बार लेट? एक्चुअली ये हुआ कि इस बार एनटीए एग्जाम करा रहा था, तो एनटीए को एग्जाम कराने में थोड़ी सी लेट हो गई। उसके बाद ओके। एडमिशन्स कराने में यूनिवर्सिटी को लेट होगा, बिकॉज यूनिवर्सिटी के लिए भी पहली बार था कि कोई ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हुआ है। तो उसके लिए भी उसका हम्म। प्रॉपर प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन का। तो उसमें उनको लेट हो गया, तो हमारी एडमिशन 4 दिसंबर को हुआ था। एंड तब से ही मैं यहाँ ओके। पर हूँ। ओह तो नाइस पूरा नाइस नाइस। दिसंबर तो पूरा जनवरी आई हैव स्पेंट इन पौंडीचेरी। oh nice nice, no it is a very new place, it is very good place because nearby हाँ oceans are there। तो हाँ एक तो मजा आता ही होगा कि नया एटमॉस्फेयर है, दिल्ली, यू आर फ्रॉम हाँ दिल्ली, सर। सो यस सर। अच्छा लगता होगा। मुझे एक अब बात बता बेसिकली दो मैं आप। नॉर्थ से हूँ तो मेरे लिए तो बिल्कुल ही अलग क्लाइमेट हो गया यहाँ का। या बट अच्छा बट है, इट इज गुड। इट्स फॉर अ चेंज, अच्छा है। हाँ। राइट राइट ओके। तो वहां पर दिव्यांशु कौन कौन से कोर्सेज है वहां पर जनरल, और कैसे एडमिशन होता है? मतलब जैसे आपने बताया कि बीटेक वाला कर सकता है एमएससी में कोर्स, तो एमएससी में दो कोर्सेज जहां तक मैं जानता हूँ, उन कोर्सेज के बारे में बता दीजिए और क्या इनटेक है उसके ओके। बारे में बता सो दीजिए। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में वी हैव 22 सीट्स फॉर मास्टर्स इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड वी ठीक हैव है 55 सीट्स फॉर मास्टर्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ओके। ठीक है। दोनों का ही इनटेक पीजीक्यूपी 31 से होता है। अगर आपके पास 11th एंड 12th, दैट मीन्स योर +2, अगर आपके पास मैथ्स है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यू विल बी प्रोवाइडेड अ सीट ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। ओके। दैट इज द तो केस। जनरली डिपेंड्स उनके 12वीं में आपके कैसे सब्जेक्ट्स रहते हैं, आइदर हाँ। पीसीएम और पीसीबी, हम्म। उसके बेसिस पे हम्म। आपको ये वाले कोर्स अलॉट होंगे, राइट? तो मैं डिफरेंस भी टोटल। बता देता हूँ सर। हाँ। न्यूट्रिशन में क्या रहता है, न्यूट्रिशन में जो भी सब्जेक्ट्स रहते हैं ना हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी या ह्यूमन एनाटॉमी से रिलेटेड रहते हैं, और 80% सब्जेक्ट दोनों में सेम है। लाइक अभी ओके। हमारे टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 6 सब्जेक्ट आर बोथ फॉर सेम फॉर द बोथ डिपार्टमेंट्स, एंड ओके। हमारी क्लासेस भी बोथ कंबाइंड ही होती है, डिपार्टमेंट। साथ में ही होती हैं।
वी स्टडी विद द न्यूट्रिशन पीपल ओनली। हम एक बड़ी क्लास में बैठते हैं जिसमें टीचर आके पढ़ाता है, वो 6 सब्जेक्ट हमारे साथ में होते हैं, लेकिन जो बाकी ओके। 2 सब्जेक्ट हैं, जैसे फूड इंजीनियरिंग हो गया, बायोस्टैटिस्टिक्स हो गया, दे आर टिपिकली ऑफ मैथमेटिक्स। तो हमको वो कोर्सेज प्रोवाइड करे गए हैं, एंड न्यूट्रिशन वालों को ह्यूमन एनाटॉमी, ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऐसे कोर्सेज दे दिए जाएंगे उसमें। आई गॉट इट, ओके। तो अभी सब कॉमन ही होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर कॉमन ओनली, तो आप लोग साथ में पढ़ते हो। नो माय यस। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन दिव्यांशु, जनरली जब हम फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से होते हैं तो वी आर वेरी क्यूरियस अबाउट कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि अभी तो नाउ वी कैन सी इन द लास्ट 2-3 years की बहुत सारे स्कोप बढ़ा है फूड टेक्नोलॉजी में। निफ्टेम जैसे इंस्टीट्यूशन को वी गॉट अ नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। देन ऑल्सो वी गॉट लॉट ऑफ न्यू कॉलेजेस दैट आपने बताया लखनऊ यूनिवर्सिटी वाला, उसमें भी नया ब्रांचेस खुला है। और मैं पिछले 10 सालों में देखूं तो पीपल आर क्यूरियस अबाउट कि यार फूड टेक्नोलॉजी क्या है। नाउ इट इज द ओपिनियन होता है ना कि इट इज काइंड ऑफ होटल मैनेजमेंट, दैट ओपिनियन इज बीइंग हाँ। चेंज्ड। सो दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग दैट आई फील, क्योंकि जो एक फूड टेक्नोलॉजी का बंदा होता है तो वो सोचता है यार खाना बनाते हैं लोग इसमें नहीं नहीं नहीं। तो वो चेंज हो रहा तो है। ये तो चीज मैंने आप भी मुझे यहाँ पर आके थोड़ी सी फेस करी। लाइक जब हम हॉस्टल्स में या फिर मेस में स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं ना, दूसरे डिपार्टमेंट्स के, तो पूछते हैं कि आप कौन से कोर्स से, आप कहाँ से, तो मैं बताता हूँ मैं नॉर्थ से, मैं दिल्ली से। तो कहते हैं कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट, मैंने कहा जी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कहते हैं अच्छा, तो आप लोग को तो खाना बनाते होंगे। अच्छा अच्छा। मैंने कहा देखिए, इट्स अ टेक्नोलॉजिकल सब्जेक्ट, इसमें सारा टेक्नोलॉजी सारा बेसिक साइंटिफिक पार्ट आता है फूड का। खाना बनाने वाला पोर्शन इज फॉर फूड होटल मैनेजमेंट पीपल। वी होटल गाइड द मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट पीपल हाउ टू कुक द फूड, हाउ टू प्रोसेस द फूड। हम फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, फूड के पैकेजिंग से लेके उसके स्टोरेज, उसके पूरा केमिकल चेंजेस, हम वो सब वेरी पढ़ते हैं। ट्रू, हमारा वेरी काम ट्रू। खाना बनाना नहीं है, हमारा काम खाने को प्रिजर्व करके आप तक सही तरह से पहुंचाना है। हमारा काम है खाने को सही तरीके से आप तक पहुंचे और सही आप मायने में तक पहुंचाना पहुंचे। है सही मायने में, वो शेल्फ है। स्टेबल प्रोडक्ट। लाइक अगर आप एक अचार भी खा रहे हैं ना, तो वो हमने डिजाइन करा है, हमने उसके केमिस्ट्री पढ़ा है, तब हम आपको प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तब वो आपके पास 1 साल तक टिक रहा है। राइट, वेरी ट्रू, वेरी हम्म, ट्रू। वो लोगों हम्म, को पता नहीं चल रहा है, वो सही वो बात लोगों को है पता वो नहीं है। वही वही वही। तो अधिवंशु, व्हाट आर द जनरल अपॉर्चुनिटीज इन फूड टेक्नोलॉजी, और आपको क्या लगता है कि अभी आप यू आर एट वेरी राइट प्लेस, और आप अपने आप को कहाँ देखते हो कि व्हाट आर द थिंग दैट यू कैन अचीव? ओके, सो अगर आपने अभी फ्रेशली अपना बैचलर्स कंप्लीट करा है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज यू कैन गो फॉर योर मास्टर्स। सेकंड ऑप्शन हम्म। इज यू कैन गो फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज एमबीए। थर्ड ऑप्शन इज यू कैन परस्यू अ जॉब, बिकॉज ग्रेजुएशन लेवल पे आपको काफ़ी सारी जॉब्स मिल जाती हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि यू गो फॉर मास्टर्स, बिकॉज जॉब में ग्रोथ नहीं रहेगी आपकी। अगर आप बैचलर्स के बाद जॉब करते हैं, योर बेसिक सैलरी विल बी अराउंड 20, आपको काफी अच्छा एक्सपोजर वेरी मिलेगा, ट्रू। लेकिन आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप हमेशा एक बैचलर कैंडिडेट की तरह रह जाएंगे, आप एक ग्रोथ नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, आपका फ्यूचर में नहीं स्कोप मिलेगा। आपको उस टाइम पे मिल वेरी सकता ट्रू। है, लेकिन आपका फ्यूचर नहीं रहेगा। अगर आप मास्टर्स करने के बाद किसी इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, आपका बहुत अच्छा ग्रोथ रहेगा, आपको एक्सपोजर भी काफी अच्छा मिलेगा, प्लस आपको वहां पे एक्नॉलेज करा जाएगा क्योंकि आप मास्टर्स करके आए हैं। एज अ मास्टर्स करके बैचलर, आए। बैचलर्स वर्सेस मास्टर बहुत डिफरेंस है। प्लस अगर आप मास्टर्स कर लेते हैं, तो आपको नॉलेज भी काफी अच्छी डीप हो जाएगी उस सब्जेक्ट के बारे में। एंड फोर्थ ऑप्शन इज यू कैन ऑलवेज जॉइन अ स्टार्टअप, बिकॉज आजकल टाइम में स्टार्टअप इज द बेस्ट आइडिया। तो इट्स बेटर वेरी टू नाइस जॉइन अ वे। स्टार्टअप ऑफ योर फ्रेंड, ऑफ योर नेबर, और ऑफ योर, लाइक अगर आपका कोई रिलेटिव स्टार्टअप कर रहा है, तो बेस्ट वुड बी यू जॉइन देयर स्टार्टअप। अपनी जो भी नॉलेज है आप उनको दीजिए, उनके फील्ड में लगाइए, तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न आएंगे। ट्रू ट्रू। और या तो आप खुद से भी स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा हाँ, मुश्किल खुद होता से है। स्टार्टअप करना इज द बेस्ट आइडिया, बट स्ट्रगल्स आएंगे सर, स्ट्रगल्स जितना करोगे स्ट्रगल। आगे जाके उतना अच्छा फ्रूटफुल मिलेगा। True, true, very true, very true. So at the event, so जैसे हम लोगों ने last year we launched a course of ₹1. Now this year also we have launched, and you have been through that courses, and as you were like discussing earlier, your students, your friends also have been through the हम्म। courses. This year also we have launched. So just recommend few of the words that you want to tell to your juniors, the upcoming batches this year who is going to be part of CUT second year, CUT हम्म। 2023, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हो और आप बताना चाहते हो कि अगर हमारे कोर्सेज कैसे थे, कितना हेल्प हुआ उससे, तो प्लीज शेयर योर थॉट्स ऑन दैट। So to all my juniors and all the people who are coming to give the Central University examination, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट आप सिलेबस के थ्रू अच्छे से जाइए, जितना भी आपका सिलेबस है अच्छे से पढ़िए। सेकंड, आपके अगर फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से है, अपने नोट्स से बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। थर्ड, राइट। इफ यू वांट एनीथिंग दैट आप लास्ट मोमेंट पर अच्छी तरह से रिवाइज कर सके, क्रिस्प नोट्स चाहिए आपको, देन यू कैन ऑलवेज कम टू एग्रीविजन फॉर, बिकॉज मैं भी उनके ही नोट से पढ़ा था।
मैंने भी लास्ट मोमेंट पे, बिकॉज मेरा जो एग्जाम था 11th ऑफ सितंबर को था एंड उससे एक दिन पहले ही मेरा लखनऊ का एग्जाम था, सो आई वाज ट्रैवलिंग द होल नाइट एंड मैं रात में नोट्स के थ्रू ही गो थ्रू हो रहा था कि बस फटाफट में एक बार गो थ्रू हो जाओ, बिकॉज मेरा सुबह सुबह ही पेपर था, मेरा फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था। सो एग्रीविजन दैट आई एम ऑलवेज थैंकफुल फॉर एग्रीविजन फॉर दैट कि मैं लास्ट मोमेंट पर पढ़ा एंड मेरा सेकंड रैंक आ गया। दैट्स गॉड, गॉड ग्रेस से मेरा सेकंड रैंक आया, सो आई एम हियर। Right. हाँ Right. So we are actually, we are thankful to you guys because now we have worked on the content a lot and we have made the very crisp notes so that नोट्स बहुत अच्छे थे people. सर, नोट्स पर टू द क्रिस्प टू द पॉइंट जितना चाहिए उतना ही लिखा था, बिकॉज लास्ट मोमेंट पर यू कांट रेफर टू द बुक्स। सब कहते हैं बुक से पढ़ो, बट जिस स्टूडेंट के पास लास्ट का सिर्फ एक वीक बचा है उस टाइम पे वो बुक खोल के नहीं देख सकता, उस टाइम पे उसको Never. सिर्फ नोट्स चाहिए, उस टाइम पे उसको नोट्स चाहिए, उस टाइम पे उसको सिर्फ चीजों को मेमोराइज करना है, उन चीजों को समझने का टाइम नहीं है उसको, अब वो चीजों को मेमोराइज करने का टाइम है। समझने का टाइम True, इज लाइक true. 2 months और 1 month बिफोर द एग्जामिनेशन। लास्ट 1 week बचा है, यू गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट, आप सारे नोट्स को पढ़िए, दैट विल बी द बेस्ट आइडिया। ट्रू ट्रू, क्योंकि लोगों को ये नहीं होता है कि मतलब बहुत सारा अब जनरल एप्टीट्यूड भी पढ़ना है, फूड टेक्नोलॉजी पढ़ना, और उसमें अब बहुत सारे फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन है, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है, प्रोसेसिंग है, प्रॉपर। इंजीनियरिंग है, पैकेजिंग है, तो बहुत सारे सेक्शंस हो जाते हैं और आपको 3 से 4 साल पढ़ना होता है। 3-4 साल के वो सारे सेमेस्टर्स के फिर से बुक्स वही पढ़ो, चीज है पैकेजिंग सर, पढ़ो, फ्रिज आपको ईयर। प्रॉपर जो एक बैचलर्स कोर्स है जो 3 साल के लिए डिजाइन करा गया है स्टूडेंट को, ट्रू आपको उस पूरे कोर्स को पढ़ के पेपर देना है, वो भी 2 से 3 महीने के अंदर। दैट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल, क्योंकि जो 3 साल की चीज है आपको उसको 3 महीने के अंदर पढ़ना है, बट वेरी ये ट्रू। आपको सोचना है कि आप उसको कैसे फॉर्मुलेट करके पढ़ें कि आपको वो याद भी रहे एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पेपर में अटेम्प्ट कर पाए। That's what. That's what. So that's what I want to tell people. Whoever are preparing, we have started new batches for this CUT examinations, and we have worked on the content. We have also had live lectures for that because a lot of people know first year में हमने क्या पढ़ा था. We used to forget basically. Second year में क्या पढ़ा था. So we have launched with a good package with the live lectures and that is recorded lectures. Also, test series also we are going to start so people can have a kind of idea how it, because now we have a idea for last year paper, so we have already idea कि कैसे होता है, तो we'll be just launching some of the mock papers so people just can accumulate the thought of कि यार ऐसा more approximately ऐसा आएगा, तो ऐसे करते दिस रहते इज द it बेनिफिट will be दैट द kind of फ्रेशर्स आर गेटिंग, दिस इज द बेनिफिट दैट द जूनियर्स आर गेटिंग। हमने पहली बार पेपर दिया था, बट द जूनियर्स आर गेटिंग द टेस्ट सीरीज एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ दैट। हमारे लिए पहली बार था, बट वही आप वही वही लोग अच्छे हैं, आप लोग लकी है। ट्रू ट्रू ट्रू। सो या विद दिस वर्ड, थैंक यू सो मच दिव्यांशु फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू अस, सर। और इससे मुझे लगता है कि बहुत हेल्प मिलेगा जो अपने जूनियर्स आ रहे हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं सीयूटी को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है जनरली, क्योंकि पिछली बार था तो लिटरली बहुत कंफ्यूजन होता था। इस साल हम लोग लगता है कि अभी कोई कंफ्यूजन भी होगा तो यू गाइस आर देयर समवेयर, यू कैन हेल्प अस एंड वी कैन हेल्प थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू दिव्यांशु, सर। बाय।